Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we will talk about CAT 2025 quant strategy that you can cover in 45 days. In this video, we will talk majorly of two groups of students. Group 1 who wants to try selective studying and group 2 who is trying to complete all the topics. We'll talk about which group you should fall in, okay? And what's the pros and what's the cons of each of the groups. So the group 1, the syllabus they are covering, as I told in the previous videos also, should only be arithmetic and algebra. If it's enough or not, we'll just talk about it in a couple of minutes. And group 2 will be completing all the topics, be it number system, be it geometry, algebra, everything. Now, if you are in middle of the group, if you have, let's say, you have mastered the difficulty of arithmetic and algebra and you are trying to move on the other topics as well, don't do that. Okay, this can punish you very much. Okay, if you are trying to sail on both of the boats, okay, you are kind of confident in arithmetic and algebra, but you are also trying to incorporate some of the questions from, let's say, number system, some from the probability. Okay, but don't do that. Let's say you are trying number system. Okay, so you cannot go into that level of difficulty or that depth that CAT requires. So why to waste your time on this? Okay. And is it enough or not? Let's see, I have the analysis here. So this is the arithmetic and algebra that we have from 2020 to 2024. And you can see both the arithmetic is around 8 to 10 questions every year. And algebra is around 6 to 9 questions every year. So if we see arithmetic from 2020 to 2024, you will get minimum of 16 to 17 questions. Okay. Achievable marks. If you correct those 16 to 17 questions with 100% accuracy, then you will have around 48 to 50 marks. And guess what? For 99% and 99.9%, you require these kind of marks only. So 99% in 2024, you will require 33 marks. And for 99.9, you will require 45 marks. And what is the maximum number of marks that we can achieve? 51. So remove everything else, okay? If you do only arithmetic and algebra, definitely 100% accuracy is there. But you can achieve 99.9 percentile marks in quants. It is possible. Just to leave number system, leave probability, leave geometry, leave everything aside. Why do you care? Right? Only two. But now let's get back. Okay. When you will do this is duration. If you are prepping for just 2 to 3 months and you don't have time to cover everything, then you will be in the group 1 student who will be selective studying, and group 2 who will going to cover all the topics. If you had 8 to 10 months of preparation before CAT, then you will be at this point, all the basics of every topic is covered, right? Now, what's the attempt? For the group 1 student, that will be 16 to 18, that we talked just about a minute ago, that it is possible. Group 2 will be trying to complete, attempt the complete paper, that is 20 to 22 questions. Now, what are the pros and what are the cons? So, the first question that will come to my mind, कि भाई अगर मैं सिर्फ 16 क्वेश्चन सही करके 99.9% ला सकता हूँ सिर्फ अर्थमेटिक और एल्जेब्रा पढ़ के, तो मैं क्यों बाकी चीजें पढ़ूंगा? लॉजिकल क्वेश्चन यही आएगा आपके दिमाग में, सबके दिमाग में यही आएगा. बट द थिंग इज कि 16 टू 18 क्वेश्चंस में आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, एंड क्वांट्स में 100% एक्यूरेसी भाई बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है ना? सो सी द प्रोज ऑफ द ग्रुप 1 स्टूडेंट इज कि वो लोग टाइम बचाएंगे, बट द कॉन इज 100% एक्यूरेसी कैसे लाओगे? बहुत डिफिकल्ट है ये प्रेप करना. पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, बहुत लोगों ने किया है ना, क्योंकि आप सिर्फ अपना टाइम ही अर्थमेटिक और अलजेब्रा में दे रहे हैं, आप कहीं टाइम ही नहीं वेस्ट आउट कर रहे हैं. लेट्स सी. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 22. टाइम होता है आपके पास 40 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए. तो एवरेज टाइम पर क्वेश्चन आपका बन रहा है लगभग 1.8 मिनट्स. ठीक है, अगर 1.8 मिनट 16 अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो लगभग 30 मिनट के आसपास बनते हैं. अगर 30 मिनट्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो नॉर्मल और 40 मिनट का पेपर है, 10 मिनट बच गए आपके. दैट इज 25% ऑफ टाइम सेव्ड. सो ये इसका प्रो है, आप अपना टाइम बचाते हो. वो 10 मिनट आप किसी और क्वेश्चन में दे सकते हैं. लेट्स से अर्थमेटिक या अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया, नहीं सॉल्व हो रहा है, दीजिए 5 मिनट उस क्वेश्चन में, है 10 मिनट आपके पास, क्या इशू, दीजिए. बट इसका कौन वही है कि 100% एक्यूरेसी से आपको सॉल्व करना है.
कि अगर मान लीजिए अर्थमेटिक अलजेब्रा का कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो 16 क्वेश्चन सही कर ही नहीं पाएंगे, तो आप 99.9 नहीं ला पा रहे। इसका सबसे मेजर कॉन यही होता है। तो नाउ इफ यू वांट टू बी इन अ ग्रुप 1 कैटेगरी, यू हैव टू थिंक हाउ गुड इज योर एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अभी 90% चल रही है, देन डेफिनेटली यू कैन फॉल इनटू दिस, है ना। बट अगर नहीं चल रही है, दो स्ट्रैटेजी हम लोग बात करेंगे अभी, है ना। बट अगर नहीं चल रही है तो आप थिंक करो कि आपको ग्रुप 1 में रहना है या आप ग्रुप 2 में मूव कर सकते हो। दो टाइम बहुत कम है, येट यू कैन थिंक अबाउट कि आप अर्थमेटिक अलजेब्रा में ही और टाइम दे दीजिए, कि आप उसी में सारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी सॉल्व कर दिए, या आप बाकी टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े कवर करने लगे। नाउ ग्रुप 2 स्टूडेंट्स का प्रोस क्या है? अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबल एक्यूरेसी, क्योंकि सही तो आपको भी 16 to 18 ही क्वेश्चंस करना है, जैसे 16 क्वेश्चन सही करना है, तो अभी भी आपके पास 6 हैं जो आप छोड़ सकते हो, या उसमें से 1 2 3 गलत कर सकते हो और बाकी 1 2 सही कर सकते हो, तो बैलेंस आउट हो जाएगी नेगेटिव मार्किंग में। करने आपको भी 16 है, बट आपके पास अब वो प्रेशर नहीं है कि यार मेरे को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करना है। ये बहुत बड़ा प्रो है। कौन क्या है इसका? अब आपको 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, लेट्स से 22 नहीं होगा, 20 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। तो आपको इनसेन स्पीड चाहिए उस टाइम पे, इनसेन स्पीड। आपको अंडर 2 मिनट्स क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है, आंसर मार्क करना है। सो दिस इज द गेम ऑफ ऑल स्पीड, है ना। तो यही दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में आप लोग प्लीज बिलोंग करिए। किसी थर्ड में अगर आप छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं तो मत करिए। या तो डिवोट 100% ऑफ योर टाइम इनटू अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, 100% ऑफ द क्वांट्स टाइम। या अगर आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं, देन आप अब किसी पे फोकस मत करिए, सबको इक्वली करिए, क्योंकि आपका बेस बहुत क्लियर है, राइट। तो अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स? मास्टर द डिफिकल्टी लेवल। द फर्स्ट, एज आई सेड कि आपको अर्थमेटिक और अलजेब्रा ही करना है। देयर इज पोटेंशियल फॉर यू टू गेट 99 परसेंटाइल, टू गेट 99.9, बट उसके लिए आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। 100% एक्यूरेसी कब मिलेगी? जब आपको हर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। कोई भी कैट कुछ भी पूछे, अर्थमेटिक और अलजेब्रा आ रहा है तो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो डिफिकल्टी इंप्रूव करिए कि कोई भी क्वेश्चन आए यू आर एबल टू सॉल्व। डोंट रन बिहाइंड अदर टॉपिक्स। सिर्फ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा हम लोग इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई डोंट ट्राई टू सेल इन 2 बोट्स, है ना। चूज योर बोट, बी द कैप्टन ऑफ दैट बोट। एंड द थर्ड, फोकस फॉर्मूला बुक। अब आपकी अगर जो पहले वीडियो भी अगर आपने देखी होगी, मैंने बताया था कि फॉर्मूला बुक्स करिए आप, उसमें जो भी आपके लेट्स से सेक्शनल मॉक्स या जो भी आप पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, उसमें से जो भी फॉर्मूलाज या क्वेश्चंस आ रहे हैं, नोट इट डाउन। बट अब आपको क्या करना है, इन 45 डेज में या नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या करोगे? सिर्फ अर्थमेटिक और अलजेब्रा पे फोकस करके उनकी फॉर्मूला बुक बनाओगे कि भाई किसी भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी का कोई भी सवाल अगर वो अर्थमेटिक या अलजेब्रा का है तो आपकी फॉर्मूला बुक में है, मतलब आप सही सॉल्व कर रहे हो, है ना। यार फालतू की कोई स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बेसिक्स होते हैं और लोग बेसिक्स ही नहीं करते। और जो 99.9 या उसके ऊपर ला रहे हैं वो बेसिक्स ही समझ रहे हैं, है ना। कोई हाई फाई वीडियो नहीं है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा पे फोकस करना, सिर्फ वो। ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, आपको एनालाइज करनी है अपनी गलतियां कहां हो रही है, क्योंकि आप स्पीड बहुत ज्यादा में आप 20 to 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, बट अब नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं, तभी आपके 99 परसेंटाइल नहीं आ रहे। अगर आप 100% लेट्स से 90 to 100% एक्यूरेसी से अगर आप 20 to 22 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, आप 99% एम कर रहे होते, है ना। नहीं आ रहा है मतलब कहीं गलतियां हो रही है आपकी। कहां गलती हो रही है? नोट डाउन करो भाई, नोट इट डाउन कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती कर दी। मे बी यू जस्ट वेंट इनटू सम ट्रैप, कोई राइटिंग मिस्टेक हो गई, 16 की जगह 14 ले लिया आपने, है ना। कोई भी एरर हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट जब तक आप नोट नहीं करोगे, हाउ यू आर गोना इंप्रूव इट, है ना। सेकंड, टाइम बाउंड अटेम्प्ट। अब आपको ये नहीं करना कि 1 घंटे में आप लगा रहे हो 10 सवाल, डोंट डू दैट। टाइम बाउंड अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, 40 मिनट्स यू हैव एज इन कैट, सेक्शनल, मॉक, सब में 40 मिनट मिलते हैं। 40 मिनट में आपको मिनिमम 20 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप कोई भी बुक ले रहे हो, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, या रोहन शर्मा की बुक ले रहे हो, सवाल की बुक ले रहे हो, कीप अ टाइमर, कीप अ अलार्म ऑफ 40 मिनट्स एंड योर एम शुड बी 20 to 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट विद गुड एक्यूरेसी, है ना। थर्ड होती है मॉक्स एंड सेक्शनल फॉर्मूला बुक। तो जैसे ग्रुप 1 में मैंने बताया था कि वो सिर्फ अर्थमेटिक और अलजेब्रा की बनाएंगे, आप सब कवर कर रहे हो या कवरिंग द एंटायर टॉपिक, तो आपकी फॉर्मूला बुक में भी सारे टॉपिक्स होने चाहिए, है ना। तो डोंट जस्ट फोकस ऑन योर फॉर्मूला बुक्स कि हाँ यार मेरे से तो ये हो जाएगा, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। डोंट डू दिस मिस्टेक।
बिकॉज हम लोग बहुत सोचते हैं कि हाँ यार ये तो सिली मिस्टेक है, ये तो मैं अगले मॉक में सॉल्व कर लूंगा, बट दैट नेवर हैपेंस. सो राइट इट डाउन, राइट एवरीथिंग. ओके, शॉर्ट वीडियो, कोई ज्यादा चीजें नहीं करनी है, स्पेसिफिक थिंग्स बताई हैं. प्लीज सेलेक्ट योर बकेट, आप कौन से बकेट में हो. ठीक है, मैं एम करूंगा लास्ट के 30 to 45 डेज है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अरिथमेटिक अलजेब्रा पे फोकस करिए. अगर बहुत ही अंदर से आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई ये तो मेरा हो गया, मैंने तो पूरा काम कर दिया अरिथमेटिक अलजेब्रा का, गो ऑन टू ज्योमेट्री, बट मैक्सिमम ज्योमेट्री, उससे ज्यादा मत बढ़िएगा, है ना. चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीजों का कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है. गो फॉर इट. ठीक, डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग सम लेंथी वीडियोस और वॉचिंग सम हाई-फाई स्ट्रैटेजीज, बिकॉज उनसे कुछ नहीं होता है. बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि बेसिक में अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो क्या है ना. Comment down below कि if you have any specific questions that you want me to answer, I will help. I will surely help. Go for it. All the best. Whatever it takes.